वाटर से, तो इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, or sometimes it is also called as salt hydrolysis. This is the reverse reaction of neutralization. ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और इसी की रिवर्स रिएक्शन होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। क्योंकि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में क्या करता है, सॉल्ट रिएक्ट करता है वाटर से, तो बनता है एसिड और बेस। जबकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करता है आपस में, तो बनता है सॉल्ट और वाटर। इट मींस दोनों ही रिएक्शन एक दूसरे की जस्ट रिवर्स होती है या अपोजिट होती है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज द रिवर्स रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नाउ लिसन, दिस इज सॉल्ट सोडियम एसिटेट, सो इट विल ब्रेक इनटू CH3COO- Na+ plus H2O, and weak acid does not dissociate because its ionization will be very low. So CH3COOH, but NaOH can break into solution and it will form Na+ and OH-. It means we can say Na+ and Na+ will get cancelled out. Now when we can say हाइड्रोलिसिस, अगर जब हमारी हाइड्रोलिसिस होती है, then listen, then during the hydrolysis of sodium acetate salt, it means CH3COO- Na salt. Now in this reaction the remaining part will be acetate ion plus H2O, and this is reversible reaction, and it will form CH3COOH plus OH-. So listen, this is called as hydrolysis. Forward reaction is hydrolysis, जिसके लिए हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जो कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, और उसको हमने कंसीडर किया गया KH। दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हमने इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH से डिनोट किया, जिसे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH कहते हैं। Now listen, this is KH. Now what will be the dissociation of acid? The reaction of dissociation of weak acid, which is CH3COOH. It means CH3COOH जो weak acid है, इसका dissociation क्या होता है, CH3COO- और H+। तो जो dissociation constant होता है weak acid एसिटिक एसिड के dissociation में, उसको हमने रिप्रेजेंट किया इससे Ka से। It is represented by Ka. What is Ka? Ka is the dissociation constant of weak acid. Dissociation constant of weak acid. Now third thing is, तीसरी चीज होती है ionic product of water. So we all know that water is a weak electrolyte. So H2O will break into H+ and OH-. And listen, here equilibrium constant is represented by Kw, which is called as ionic product of water. So Kw is ionic product of water, which is equal to the product of the concentration of H+ ion and OH- ion. So listen, this will be your ionic product. Now Kw and KH will be what? KH will be equilibrium constant for hydrolysis of salt reaction. It means जो KH है
concentration into concentration of OH minus ion divided by concentration of acetate ion, it means CH3COO minus ion, and concentration of water. Listen, concentration of water is taken as 1 molar. So listen, its concentration, if it will be 1, then it will become concentration of CH3COOH into concentration of OH minus upon concentration of CH3COO minus ion. So this will be the value of KH. Now what will be the value of Ka? Means dissociation constant of weak acid Ka, it will be equal to concentration of CH3COO minus into concentration of H plus divided by concentration of CH3COOH. Now we calculate the ionic product of water. Since water is weak electrolyte, so there is equilibrium between water and real H plus and OH minus ion. So the equilibrium constant for this equilibrium will be represented by Kw, and it is called as ionic product of water, and it will be equal to the product of the concentration of H plus ion and OH minus ion. Now listen, now we will make the relationship between KH, Ka and Kw. अब हम लोग KH, Ka और Kw में रिलेशनशिप बनाएंगे. So listen, now we divide Kw by Ka. It means Kw को Ka से डिवाइड करने पर तो हमारा हो जाएगा Kw by Ka. What is the value of Kw? It is concentration of H plus ion into concentration of OH minus ion. This is Kw divided by Ka. What is Ka? It is concentration of CH3COO minus ion into concentration of H plus ion divided by concentration of CH3COOH. Now this will go in upward side. Now it will become concentration of H plus and concentration of H plus will be cancelled out. Now it will become concentration of CH3COOH into concentration of OH minus ion divided by concentration of CH3COO minus. It means you can see Kw by Ka will be equal to what? This is what? Concentration of CH3COO minus ion into concentration of OH ion upon concentration of CH3COO minus ion. This is what? This is equal to KH. It means हम कह सकते हैं Kw, Ka और KH के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगी? So KH equal to we can write Kw by Ka. It means जो KH है, what is KH? Hydrolysis constant. It is equal to the ratio of ionic product of water and dissociation constant of an acid for the hydrolysis of salt of weak acid and strong base. Now listen, this formula we will use in numerical problems. So listen, there is another formula. If we take the concentration of acetate ion is C, अगर हमने concentration acetate ion की या salt की consider की कितनी C, capital C. So listen, then initial concentration of acetate ion at OH minus ion will be 0. If degree of hydrolysis is small,
concentration C, it is this. It means जो pH, pKw और concentration C होती है salt की, उसके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है? जब किसी सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस की जाती है और सॉल्ट बनता है किससे? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो हमारा फार्मूला होता है pH equal to 1/2 pKw plus pKa plus log C. So listen, this is the formula for the hydrolysis of salt of weak acid and strong base. यही फार्मूला हमारा किसके लिए है? जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट की हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अगर न्यूमेरिकल में हमें क्वेश्चन में कोई भी ऐसा सॉल्ट दिया जाएगा जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता हो, तो हम लोग उसकी पीएच निकालने के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं अगर न्यूमेरिकल में सॉल्ट को हाइड्रोलाइज किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट strong acid and weak base. Strong acid and weak base. It means strong acid और weak base से मिलकर जो salt बनता है, उसकी हाइड्रोलाइसिस को हम लोग डिस्कस करेंगे। So listen, strong acid will be HCl, weak base means NH4OH, so salt will be HCl plus NH4OH, it will form NH4Cl plus H2O, because when acid reacts with base then it will form salt and water. It means यहाँ पर हमारा salt कौन सा पॉसिबल हो सकता है? NH4Cl. It means हमें NH4Cl सॉल्ट की क्या करनी है? हाइड्रोलाइसिस। हमें पता है सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारा बनेगा एसिड और बेस। हमारा एसिड कौन सा बनेगा? HCl और बेस क्या बनेगा? NH4OH। नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग सॉल्ट को क्या करेंगे? वाटर में जब जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा अपने आयंस में, NH4 plus Cl minus plus H2O, it will give H plus Cl minus, this is strong acid, ये हमारा डिसोसिएट हो सकता है, बट दिस इज वीक बेस, ये हमारा डिसोसिएट नहीं होगा। नाउ Cl minus and Cl minus get cancelled out, so NH4 plus H2O, it will form NH4OH plus H plus, it means H plus और हमारा क्या बचेगा यहाँ पर? NH4OH. So this will be the final reaction for the hydrolysis of salt, which is obtained by strong acid and weak base. इसकी कंसंट्रेशन हमने मान ली इनिशियल C0 थी, तो इनिशियल हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 0 बनेंगे। अगर कंसंट्रेशन हमारी C है और डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है स्मॉल है, तो फाइनल कंसंट्रेशन होगी NH4 प्लस की C minus CH, जिसको हम लोग C ब्रैकेट में 1 minus H भी लिख सकते हैं। तो फाइनल कंसंट्रेशन हमारी कितनी होगी? जितना हमारा रिएक्टेंट टूटेगा, CH टूटेगा तो CH की प्रोडक्ट हमारा बनेगा, क्योंकि 1 मोल जब सॉल्ट टूटता है तो 1 मोल HCl होता है और 1 मोल NH4OH होता है। तो अगर CH हमारा सॉल्ट टूटेगा तो CH ही हमारा H+ बनेगा और CH ही हमारा NH4OH बनेगा। अगर हमने माना इस हाइड्रोलाइसिस
हाइड्रोलिसिस में जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो KH है, तो KH की वैल्यू क्या होगी? सो KH वैल्यू विल बी concentration of H plus into concentration of H4 OH divided by concentration of NH4 plus. concentration of water भी आएगा बट उसकी concentration कितनी होती है? 1, इसलिए उसे concentration of water को लिखने की जरूरत नहीं है. It is considered as 1. Now this will be the value of KH. अब हम लोग निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे Kb से. यहाँ हमारा बेस कौन सा है? वीक बेस है, और वीक बेस होता है NH4OH, क्योंकि हमने यहाँ कौन सा बेस यूज किया है? वीक बेस किया है NH4OH. इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Kb. So this is the dissociation constant of a base. और ये वैल्यू ये क्या क्या देगा? NH4 प्लस आयन और OH माइनस आयन. So what will be the value of Kb? It will be concentration of NH4 plus and concentration of OH minus divided by concentration of NH4OH. अब हम निकालेंगे Kw. Kw हमें बताया होता है concentration of H plus into concentration of OH minus. Now we relate KH, Kb and Kw. अब हम क्या करेंगे? Kw upon Kb निकालेंगे. तो Kw upon Kb निकालेंगे अगर, तो Kw की जगह हो जाएगा concentration of H plus into concentration of OH minus divided by Kb की वैल्यू यहाँ रखेंगे. This will become concentration of H4 plus into concentration of OH minus ion divided by concentration of NH4OH. Now concentration of OH minus concentration of OH minus ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ऊपर आ जाएगा, और ये हमारा Kw upon Kb ये किसके बराबर हो जाएगा? concentration of NH4OH upon concentration of NH4 plus into, और ये हमारा concentration of H plus वाला पार्ट भी ऊपर आएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा. And listen, this is what? concentration of NH4OH into concentration of H plus upon concentration of NH4 plus. इतने पोर्शन की जगह हम लिख सकते हैं KH. It means Kw by Kb किसके बराबर आया? KH के. तो KH equal to Kw by Kb. यहाँ पर क्या pH का फॉर्मूला आता है? इस केस में हमारा pH का फॉर्मूला आता है pH equal to 1/2 ब्रैकेट में pKw minus pKb minus log C. ये हमारा फॉर्मूला आता है किसके लिए? pH के लिए. जब
base means NH4OH. This will form CH3COO NH4 plus H2O, because when weak acid reacts with strong weak base, जब weak acid weak base से react करेगा या acid base से react करेगा तो हमेशा क्या बनेगा, salt और water. It means हमें किस salt की hydrolysis करनी है, CH3COO NH4 की. So when it will hydrolyze, then it will form CH3COOH plus NH4OH. ये रिएक्शन हमारी पलट जाएगी. इट मींस ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी. जब सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे तो मिलेगा वीक एसिड और वीक बेस. दिस इज सॉल्ट, दिस इज वाटर, दिस इज वीक एसिड, दिस इज वीक बेस. नाउ दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन इन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. अब हमारा जो भी ये हमारा सॉल्ट है क्या है, शुरू हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस, क्योंकि सॉल्ट हमेशा अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं. नाउ लिसन, सो CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस H2O एरो वीक एसिड, ये हमारा ब्रेक नहीं होगा और वीक बेस भी हमारा ब्रेक नहीं होगा. इट मींस हमें इस बार एसिड का भी डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा और बेस का भी डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एसिड और बेस दोनों ही क्या है, इस बार वीक है. नाउ वी विल राइट द डिसोसिएशन ऑफ एसिड. सो CH3COOH, इट विल गिव CH3COO माइनस प्लस H प्लस. ये हमारा डिसोसिएशन ऑफ एसिड होगा और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा इस एसिड के लिए, Ka. तो Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो द वैल्यू ऑफ Ka विल बी कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH. ये वैल्यू हो जाएगी Ka की. KH की वैल्यू क्या होगी, इस सॉल्ट की अगर हाइड्रोलिसिस करें तो जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे KH से, और KH की वैल्यू क्या होगी इस रिएक्शन 1 के लिए, अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या है, KH है, तो KH इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी, हम रिएक्शन 1 से क्या निकालेंगे, ये रिएक्शन 1 है हमारी, इस रिएक्शन 1 से हमें क्या मिलेगा, KH will be equal to concentration of CH3COOH into concentration of NH4OH divided by concentration of acetate ion CH3COO minus ion into concentration of NH4 plus ion
डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ NH4+, और ये हमारी वैल्यू जो आएगी उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- आयन है ये भी हमारा बचेगा, और ये वैल्यू किसके बराबर है? दिस इज व्हाट इज दिस इज KH। ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है? KH की। कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन या NH4+ आयन। ये वैल्यू किसके बराबर है? KH की। इट मींस KH विल बी इक्वल टू KW अपॉन KA इनटू KB। तो यहां पर pH का क्या फार्मूला होता है? इस केस में या हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय weak acid एंड weak base के केस में जो pH का फार्मूला होता है वो होता है pH इक्वल टू 1/2 pKw माइनस pKw प्लस pKa माइनस pKb। ये फार्मूला हमारा होता है pH के लिए। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ऐसे सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कराई गई हो जो सॉल्ट हमारा वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता हो, जैसे अमोनियम एसिटेट, तो उसके लिए हम लोग उसकी pH कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो pKa है और जो pKb है और जो pKw है, इसका और भी फार्मूला क्या हो सकता है। तो हमें पता है जो pH होती है इट इज माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। सिमिलरली pKw इक्वल टू माइनस लॉग KW। सिमिलरली pKa इक्वल टू माइनस लॉग KA। सिमिलरली pKb इक्वल टू माइनस लॉग KB। इट मींस न्यूमेरिकल्स में हम लोग ये फार्मूले भी यूज कर सकते हैं। POH अगर हमें निकालना है सो इट इज माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस R। और क्या रिलेशन से हम यूज कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये इक्वल टू होता है 10 to the power minus 14 at 25 डिग्री सेल्सियस। ये होता है हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और क्या फार्मूला हम यूज कर सकते हैं pH और POH निकालने के लिए? pH plus POH equal to 40। ये सारे फार्मूले ही हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस हेंडरसन इक्वेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हेंडरसन इक्वेशन। तो हेंडरसन इक्वेशन हमेशा किसके लिए दी गई? बफर सॉल्यूशन के लिए। पहला टाइप का बफर सॉल्यूशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेंडरसन इक्वेशन। किसके लिए दी गई? बफर सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट वीक एसिड और उसका सॉल्ट, किसी वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट obtained by the addition of strong base। पहली जो इक्वेशन है वो उस बफर सॉल्यूशन के लिए है जिसमें क्या क्या हो, किस चीज का मिक्सचर हो? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड मींस CH3COOH और उसका सॉल्ट किसी स्ट्रांग बेस के साथ, जैसे CH3C2Na। इसके लिए हमारी हेंडरसन इक्वेशन क्या हो जाएगी? pH इक्वल टू
इसके लिए हमारी जो एंडरसन इक्वेशन आती है वो हमारी क्या आएगी? सॉल्यूशन नाउ वी विल डिस्कस इट। तो जो हमारी एंडरसन इक्वेशन आती है इस टाइप के प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए जिसमें बी बेस हो, जैसे H2O है, और उसका सॉल्ट हो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे H4Cl, तो इस एंडरसन इक्वेशन में हम लोग POH निकालते हैं, जो कि किसके बराबर होता है? pKb प्लस log concentration of salt upon concentration of base. So this is also एंडरसन इक्वेशन। ये भी हमारी क्या है? एंडरसन इक्वेशन है उस बफर सॉल्यूशन के लिए जिसमें क्या मिक्स किया गया हो? वीक बेस और उसका सॉल्ट, जो कि किससे मिलके बना हो? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। थैंक यू।